Thank God for what I heard today. और प्रभु का धन्यवाद हो आज जो मैंने सुना है You उसके लिए। see, God is He's so patient with us. प्रभु हमारे साथ बड़े धीरज को धरता है, He loves us so much. हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। That is the reason that He speaks to us each day and day. He doesn't speak to us on Sundays, और but केवल रविवार को नहीं लेकिन प्रतिदिन हमसे बात He speaks करता to है। us each day. लेकिन हर दिन वो हमसे बात करता है। As a brother speaking about, I was meditating on this verse also earlier. It was about this two disciples who were walking towards Emmaus. और यहाँ पे दो शिष्य थे जो एमाउस के मार्ग पर चल रहे थे। But you see this two or three things in that chapter. One thing it says when they were walking, they were talking about Jesus. लेकिन दो या तीन चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। मार्ग में जब वो चल रहे थे, वे दोनों शिष्य यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। One thing is I'll go to that verse. If you read this verse in verse 19, Luke chapter 24 and verse 19. लूका उसका 24 उसका 19 वचन में हम पढ़ते हैं इसको। And when Jesus came to them, he said, "What things?" And they said to him, "The things about Jesus the Nazarene, और वहां पे यीशु मसीह उनको पूछता है, कौन सी बातें की तुम बात कर रहे हो? उन्होंने कहा यीशु नाजरी के विषय में, who was a prophet, mighty in deed और जो काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, and in word, और वचन में in the sight of God परमेश्वर की दृष्टि में and all the people." और सब लोगों के सामने भी। They said, we are speaking about Jesus. He is the mighty God. He's Nazarene. He's speaking of Nazarene. और यीशु मसीह के बारे में जो सामर्थी है, जो यीशु नाजरी है, He's a prophet, जो एक नबी है, and he's mighty in deed. I mean, this works. He's mighty, और कामों के अंदर सामर्थी है, and he's also in the sight of God is good. और यहाँ पर लोगों के सम्मुख में भी। So they were meditating about Jesus. They were thinking about what happened and all the things और about यहाँ पर Jesus. यीशु मसीह के बारे में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्या क्या हुआ है। I was thinking, when Jesus saw these things, they were meditating, they were thinking about him and talking about. That is the reason Jesus said, and he came to and he spoke to them. और यहाँ पर जब यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, उस पर मनन कर रहे थे, तब यीशु मसीह आकर उनसे बात करता You है। will see another place you'll see in verse 22. 22 वचन में हम पढ़ते When हैं, I speaking to Jesus, saying, like they were there in that place when Jesus was, crucified, and they came to see. और यहाँ पर उन लोगों के बारे में जो वहां पर थे जब यीशु मसीह क्रूसित हुआ था। Now you see that verse 22 says, but also some women among us amazed us और यहाँ पर कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, when they were at the tomb early in the morning. जो भोर को कब्र पर आई थी। He says there were some women who were with us, who were there, and they were amazed to see the tomb. और यहाँ पर कुछ स्त्रियां हमारे साथ थी जो आश्चर्यचकित हुए उस कब्र पर जो हुआ। Verse 24 it says, some of those who were with us went to the tomb और यहाँ पे कई जो साथी हमारे साथ थे वे कब्र पर गए, and found exactly as the woman said. और जो स्त्रियों ने कहा था वैसा ही वहां पाया। So they were there and they were seeking God and they see what happened. They wanted that thing was there, and that is why Jesus came and spoke to them. And later we see he had food with them. और यहाँ पर हम देखते हैं ये दो शिष्यों के बारे में सारी घटनाएं जो हो रही थी, वे यहाँ पर उपस्थित थे, जानकारी रख रहे थे, उस बारे में चर्चा कर रहे थे। इस कारण यीशु मसीह उनको वहां पर मिलता है और उनके साथ बाद में आकर भोजन करता है। If we read the Revelations chapter 3 and verse 20. और प्रकाशित के तीसरा अध्याय हम 20 वचन में जब हम पढ़ते हैं, Behold, I stand at the door और वहां कहता है कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं and knock. और खटखटाता हूं, If anyone hears my voice यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलता है and opens the door, और द्वार को खोलेगा, I will come into him and will dine with him and he with me. तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। And Jesus saw those people and then he saw their hunger for them and he came to them and he spoke with them and he dined with them. यीशु मसीह उनके साथ आता है, उनसे बात करता है और उनके साथ भोजन करता है। The same promises for us also. और ये हमारे लिए भी एक प्रतिज्ञा है। And I really feel like that God sees that thirst, that hunger for Christ. और जब परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख और प्यास को देखता है, And Jesus surely will come and he'll come as his word says. It's 100% true that he'll come and he'll dine with us और and speak सच to में us. वचन कहता है कि जरूर वो आएगा, 100% वो आएगा, हमारे साथ वो भोजन करेगा। I really pray that God will let that thing happen each and every day in our lives. और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ये वास्तविक करे इस बात को। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। हमने आज परमेश्वर के साथ चलने के संबंध में बात किया कि हम कितने करीबी से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हाउ क्लोजली वी आर वॉकिंग विद गॉड। एंड
पिछले सप्ताह में आई वॉज रीडिंग वन पार्ट ऑफ वर्ड एंड गॉड रियली एनकरेज मी, चैलेंज मी। परमेश्वर ने मुझे सही में चुनौती दिया उस वचन के भाग में जहाँ लिखा है कि उत्पत्ति उसका 22:14, जेनेसिस 22:14, जो अब्राहम के बारे में जब वो इसहाक को, वहाँ लिखा है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि परमेश्वर यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। और वो हम ये सभी कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर इसहाक को मांग रहा था अब्राहम से, और सबसे प्रिय लगाव जिस चीज़ पर है, जो मूर्ति जो हमारे जीवन में बन जाती है, जो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको परमेश्वर के प्रति समर्पित करें। आज परमेश्वर भी मुझे याद दिला रहा था कि कौन सी ऐसी बातें हैं कि उस यात्रा को करते करते मुझे परमेश्वर के सामने पूर्ण समर्पण करने की ज़रूरत है। जैसे हमने 22 वचन में, यहाँ पे 14 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर उपाय करेगा। वो नाम अब्राहम को कब मिलता है? जब वो अपना सर्वस्व समर्पण परमेश्वर को दे देता है। हम भी चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करे। इस नए साल के अंदर बहुत सारे उपाय परमेश्वर से हम हमारे आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि वो संपूर्ण समर्पण जो उस मोरिया पर्वत पर अब्राहम ने किया, वो मेरे जीवन में मिसिंग है। वैसा समर्पण आज मैं नहीं कर रहा हूं। और परमेश्वर, अब्राहम वहां से 3 दिन तक सफर में जा रहा है। हम उसमें आगे उस वचन में पढ़ते हैं, सोचते सोचते जा रहा होगा कि कैसे मैं इस आइजक को समर्पण करूंगा, कैसे मैं इस लगाव को मेरे जीवन से दूर करूंगा। ही माइट बी थिंकिंग क्या क्या मैं मुझे करना है, क्या विचार उसके मन में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर्वत पर चढ़ जाता है परमेश्वर को समर्पित करने के लिए। एंड मुझे ये मेरी एक आत्मिक उस यात्रा को दिखाता है इस नए साल के अंदर कि मैं मेरे हर एक जीवन में उस रुकावट को पैदा करने वाली बातें, हिंड्रेंसेस है, जो मेरे और बीच में, परमेश्वर के बीच में आती है। मुझे लगता है परमेश्वर उस इसहाक को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इसहाक के कारण जो दूरी मेरे और परमेश्वर के बीच में आ जाती है, उसको परमेश्वर मारना चाहता था। और परमेश्वर चाहता था क्या मैं एक संपूर्ण समर्पण के साथ जीऊं। मेरे जीवन के अंदर कई बार ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर और मेरे संबंध के बीच में आ जाती हैं, और परमेश्वर चाहता है कि उन बातों को मैं पूरी तरह से, 9 वचन में लिखा है कि अब्राहम ने इसहाक को बांध कर उस वेदी के ऊपर रख दिया वहां पर। और इस बात को वो प्रतीक के समान मुझे दिखाता है कि कई बार इसहाक यानी हमारी सबसे प्रिय चीजें जो हमारे जीवन में होती है, हमें परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित करना है। कई बार हम उस इसहाक को बांधते नहीं है, वी डोंट टाई दैट आइजक ऑन द ऑल्टर। कई बार परीक्षा के समय में बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है, भय आ जाता है, वापस हम उस इसहाक को उतार लेते हैं। प्रभु अब मैं इसको समर्पित नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी चिंता का विषय है, और उसको वापस ले लेते हैं। वो संपूर्ण समर्पण नहीं करते। अब्राहम ने उसको बांधकर उस वेदी पर रख दिया। दिस एनकरेज मी अ लॉट। मुझे बहुत प्रोत्साहित हुआ कि परमेश्वर जब उस इसहाक को, उन सारी प्रिय चीजों को मैं उस वेदी पर पूर्ण रीति से रख दूंगा, परमेश्वर वहां पर मेरे लिए उपाय करेगा। और वहां पे लिखा है कि इस परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि अब तू इसको मत मार। और अब्राहम की आंखें खुल गई। आज हमने आंखें खुलने के बारे में देखा कि हमारी आंखें जब खुल जाती है, एमाउस के मार्ग पे 2 शिष्यों की आंखें खुल गई। अब्राहम की आंखें, उस वचन में लिखा है 10-11 वचन में, अब्राहम ने आंखें उठाई, उसकी आंखें खुलकर उसने उस उपाय को देखा। प्रभु मुझे प्रोत्साहित कर रहा था कि मैं तेरे लिए भी एक उपाय को करना चाहता हूं, लेकिन क्या तू उस इसहाक को पूरी तरह से बांध कर, उन सारे बंधनों को, उन चिंता बोझ को बांधकर उस वेदी पर पूर्ण समर्पण कर सकता है उस आत्मिक जीवन के अंदर? और तब जब हम उसको पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, प्रभु हमें उस उपाय को दिखाएगा। और इस बात को मैंने समझा कि उस संपूर्ण समर्पण के अंदर हमारे लिए परमेश्वर एक प्रयोजन करना चाहता है। इन कंप्लीट सरेंडर गॉड वांट्स टू शो अस प्रोविजन ऑफ हिज इन आवर लाइफ। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि ये नए साल के अंदर उन सारे इसहाक को, उन सारी बातों को, वो बोझ हो सकता है, चिंता हो सकता है, बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे परमेश्वर के सामने लाकर उस मोरिया पर्वत पर समर्पित करना है। वहां लिखा है कि 14 वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। भाइयों और बहनों, ये उपाय जो है वो जमीन पर नहीं होता है जहां पर हम समर्पण नहीं है। उस पर्वत के ऊपर ही हम उस उपाय को पाएंगे, उस माउंट मोराया के ऊपर, जहां हम संपूर्ण समर्पण हम अपना अपना कर देंगे। अ टोटल सरेंडर टू गॉड। लॉर्ड आई डू नॉट वांट माय विल। प्रभु मैं अपनी इच्छा को नहीं चाहता हूं, तेरी इच्छा को। यदि हम परमेश्वर के उपाय को देखना चाहते इस नए साल में, लेट्स लर्न टू वॉक ऑन दैट माउंटेन ऑफ मोरिया, जहां पे इस कंप्लीट सरेंडर परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, हमारे फैमिली में, हमारे नीड्स में, हमारे प्रेयर जो भी हो सके,
God wants to do a provision, but are we willing to walk on that mountain of Moriah, the complete surrender? हम बांध कर उस आइए प्रभु को समर्पित करें. That Lord, we want to see your provision in this new life, in my spiritual life. But प्रभु मैं अपना संपूर्ण समर्पण करना चाहता हूँ. May Lord help us to really enjoy this provision in this life by complete surrender. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. प्रभु ने मुझे ये सिखाया कि बहुत आसान होता है हम लोगों को हमारी कमियों को दूसरों के सामने रखना, क्योंकि हम सब लोग अभी एक परिवार है और सब लोग एक ही चीज से गुजर रहे हैं, वो है पाप। और हम लोग पाप में गिर रहे हैं और प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, फिर से पाप में गिर रहे हैं, फिर से क्षमा मांग रहे हैं। हम लोग सारे थक चुके हैं पाप करते करते और हम चाहते हैं कि हम सब लोग पाप से एकदम फ्री हो जाए। मगर प्रभु ने मुझे एक और चीज सिखाया। अभी मैं पाप जो कर रही हूँ, मैं खुद कन्फेस कर रही हूँ, वो बोल्डनेस मुझे प्रभु ने दे दिया है। मगर प्रभु ने मुझे ये भी सिखाया कि अब एक गाना है, अमेजिंग ग्रेस सेव्ड अ रिच लाइक मी। तो वो एक रिच मैं अपने आप को मानती हूँ, मगर वही रिच अगर कोई और ब्रदर और सिस्टर ने मेरे बारे में बोला, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैंने तो मतलब हाँ, मैं दूसरों के सामने कन्फेस मैं कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ, मगर अगर दूसरे मेरे बारे में बोल रहे हैं कि हाँ, तुम वैसी हो, वो लेने के लिए मुझे कितना तकलीफ होता है, वो प्रभु ने सिखाया। मुझे प्रभु ने बताया है कि तुम्हें तुम्हें हर चीज़ में तुम्हें तोड़ना होगा, मतलब वो सारी चीज़ अगर दूसरे भी तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि तुम वो हो ही हो और तुम्हें मेरे पास आना होगा और मैं तुम्हें उस चीज़ से तुम्हें मुक्ति दूँगा। और ये सब चीज़ों से प्रभु ही मुक्ति दे सकते हैं और कोई भी नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि मैंने बहुत कोशिश किया कुछ चीज़ों को करने के लिए, वो सब फेल हो गया। लास्ट वीक में मुझे एक जगह पे जाना था फ़रवरी में, तो मैंने अपने आप से पूरा कोशिश किया, मगर वो कैंसल हो गया और अभी मुझे पता नहीं कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँगी, कहाँ पे मैं रहूँगी, और मुझे पूरा प्रभु पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि प्रभु हर चीज़ में मुझे एक-एक चीज़ तो मेरे पाप के बारे में बता रहे हैं और दूसरा ऐसे क्षेत्र मुझे दिखा रहे हैं जहाँ पे मैं टूटी नहीं हूँ। अगर दूसरे मेरे बारे में बोल रहे हैं और मुझे उसको एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ और अभी वो दूसरे भी मान रहे हैं मेरे बारे में। तो मुझे प्रभु से ही विनती करके ये बोलना पड़ेगा, मुझे ये सब चीज़ों से आप मुक्त कीजिए और मुझे ऐसा आपके जैसा बनाइए। थैंक यू।